Good evening friends, I welcome you once again to the A4SOP video tutorial series. I'm sorry for the slight delay between the previous video and this video. That was because of certain unavoidable reasons. First of all, I'd like to thank all those people who have given their comments on the YouTube comment box about my previous video, that is GP decoded video. And some of them that I like to quote is one from Anubhav Nag. He says, so your videos are really making lots of sense and minimizing the perception gap of students regarding the task. Looking forward to many more. Thank you, sir. Now, Anubhav Nag, I'd like to tell you that the job of any SSB guidance program is to minimize the gap, and the gap, that is what the expectation of the SSB is there and what the candidate perceive. Unfortunately, this huge gap, and this gap has been created by none other than by the private coaching centers and the various sites that are available on the internet. So that's my job, and I'm glad to say that whatever I'm doing is making a lot of sense to all of you. Second one is from Karanveer Singh. He writes, respected Sai, sir, I respect the effort which you are doing for providing Saraswati through these videos without expecting Lakshmi. As whenever I used to search for videos related to SSB guidance, I found nothing more than recommended candidates making marketing for some institute wearing their dresses. Now, your videos have been helpful to me and I wish you good luck and health. Yours sincerely, Karanveer Singh. Now, Karanveer Singh, first of all, I'd like to thank you for your comment. I must tell you, the conventional SSB coaching model is based on Ratta, and what is the primary motive is to earn Lakshmi. So Lakshmi is in front and they are behind it. And whereas in case of SSB, that is A4SOP, it's a process-oriented training. It emphasizes not on the clearance of SSB but on improving you as a person. When you improve as a person, your performance in the SSB automatically improves. It's a byproduct. So the primary focus is not to crack the SSB but to improve you as a person, and SSB you get recommended as a byproduct. And that's why probably DIPR has acknowledged this project and have presented at various levels and so much of official recognition to this program. So this is a process-oriented approach, and probably that's what is the reason because of which I'm getting such excellent response from all of you there. Thank you for that. Now today we are going to take the Understanding TAT Part 3. You have already seen the Part 1 and Part 2 in my previous video. You would have seen in my previous uploadings. And in order to understand this particular Part 3 of Understanding TAT, I'll request you to kindly watch these videos if you have not already done it. That is SSB Interview Decoded, Social Field Theory, Understanding TAT Part 1 and Understanding TAT Part 2. If you have not watched it already, please do it, only then this video will make sense to you. Now, story writing is an important part both in the PP&DT, that is the picture story part, writing part, and the discussion of course is there in the stage 1. And also in the stage 2, that is in the TAT, you get 12 pictures to write, the last one is a blank, and 30 seconds to observe in either case whether it is PP&DT and TAT, and 4 minutes to write your response. And you know the response has to be written in 3 parts, that is what led to the situation, what is currently going on, and what is the final outcome. Now based on the TAT Part 1 and Part 2, I got a large number of requests to upload a video as to how to write TAT stories or PP&DT stories. Now, so what I'm doing is I'm going to make an effort to tell you through these videos how it has to be written, and they are going to be in couple of parts, and today we will take only what led to the situation. That is the first part. Balance of them we'll see it in subsequent videos based on your feedback and the effectiveness of these videos that I'm going to upload now. Now let's see what is the actual logical approach when you encounter this TAT situation, how it has to be handled. So this is you, and a stimulus has been presented to you in the form of a picture. Now this picture I've already told you as in part of the TAT Part 2 that this is not a picture, it is a stimulus, situation hai, ye ek paristhiti hai. So what you have to do is the moment you get this, you have to actually initiate a thinking process inside, and based on which based on the various other parameters that you have to internally do inside you, you give a response that is visible outside. So this response is actually a reflection of this input coming from the external and you generating your own abstract component, mixing the two and going through certain logical process. So this response is actually a reflection of the nature of thought process that got generated inside you when the stimulus was fed to you. So that's fantastic, that's fine. Now, in order to understand Ganga,
you have to understand Gangotri. गंगा को समझना है तो गंगोत्री को समझना पड़ेगा. In the same way, in order to handle this problem which has been painted to you in the form of this picture, you have to understand what led to this situation. ये परिस्थिति आने का कारण क्या है? Unless this कारण is not understood, इस कारण का निवारण नहीं हो सकता. It is like a doctor. You as a patient, we go and tell the doctor the symptoms that we are facing, कि बुखार है सर, ये पेट में दर्द है, this that and all that. He listens to our symptoms and then he analyzes this, carries out a diagnosis and comes to a root cause कि आपको ये problem है. And once the problem is identified, he then starts the treatment. So unless the diagnosis is correct, the treatment cannot be correct. So unless the Gangotri is correctly identified, the Ganga cannot flow. Now unfortunately in the conventional coaching model आपको रटाए स्टोरी पकड़ा देते 30-25 बोला इसको बैठ कर रटते रहो, ये डीप थिंकिंग वाली स्टोरी है. एंड देन उसके बाद में यू डोंट अंडरस्टैंड द गंगोत्री, बट यू हैव सम काइंड ऑफ अ गंगा गिवन बाय द कोचिंग सेंटर वाले सर, एंड देन ट्राई एंड फिट देम आर्टिफिशियली इनटू सम गंगोत्री व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू द स्टिमुलस. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. So if you have understood this, Gangotri is important, only then the correct Ganga will flow. Now you have to understand that what led to the situation is a question that you are being asked by the psychologist, which is to be based on this picture. Now this involves certain decision making process, and in one of the OLQs, one of the OLQ is speed of decision. So let's see what is the speed of decision, and what are they trying to see when you write all these things in terms of what led to the situation. Now speed of decision का definition है the ability to arrive at workable decision expeditiously. Now first of all you have to arrive at workable decisions. Decisions का मतलब निर्णय, और workable निर्णय मतलब ऐसे निर्णय जो functional हो. Now in order to take a decision you must know what is the problem. Unless you know the problem, how will you take decisions on those problems? So you can only arrive at workable decisions when you are able to identify what is the problem. And इसमें दोबारा बोलता है it comprises of, that speed of decision comprises of the appropriateness of the decision rightness, कि आप कितने सही तरीके से सही निर्णय पे आए हो, और तो इसमें एक तर्क की शक्ति आ जाती है आपकी. And then is the quickness in arriving at the decision, कितने कम से कम समय में उस निर्णय पे आते हो. Now कम से कम समय इसलिए है कि look at this, if you join the armed forces, the nature of operation that we undertake, the time is always at premium. आप ताज में कसब घुस गया है, you are inside, there is no time, either he shoots you or you shoot him. So all your decision has to be taken very very quick. So your time or the reaction time is very very less. So you need to be, as a military leader, your thinking process has to be very very fast. Your decision making mechanism has to be very very powerful and under pressure. So this is what speed of decision is there. So what led to the situation, इस picture को देख के आपने एक निर्णय पे आना है कि what led to the situation. So that's very easy. Now in order to understand what led to the situation, आपका पहला काम है पिक्चर को क्लियरली और इन डिटेल ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व मतलब देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना. उदाहरण के लिए सपोज मैं आपके घर में आता हूँ और आपकी मम्मी बोलती है कि आप उनसे मिल लो उनके बेडरूम में. सो आई वॉक इन टू योर बेडरूम. सो आई सी यू आर नॉट देयर. सो एज आई वॉज अबाउट टू कम आउट, आई फाइंड ए स्नेक अंडर योर बेड. स्नेक ने मुझे देखा, मैंने स्नेक को देखा, स्नेक अंदर घुस गया, मैंने भी दरवाज़ा बंद कर दिया. सो द मोमेंट आई कम आउट आई सी यू. सो आई कम एंड टेल यू कि भाई तुम्हारे रूम में मैं गया था एंड आई फाउंड ए स्नेक देयर. नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, you have not seen the snake, but I told you that there is a snake in your room. Now can you go and sleep inside your room with with the normal ease with which you normally sleep? I'm sure you cannot. Why? Have you seen the snake? You have not seen the snake. But the very fact that I have given you this information, it has affected you so much. Your mind has accepted this input. Now when you go inside the room, you are very very observant कि snake तो नहीं है. सोते टाइम भी नींद ठीक से नहीं आएगा, अल्टा पल्टी मारते रहोगे. So if you have understood what is the difference between the snake existing there and you don't know, you go and sleep आराम से. Now second case में the snake is existing but आपने नहीं देखा. Just the fact that I told you there is a snake, you became very very alert. So you have to look at this picture with the same alertness in which you would go inside your room when there is a snake. उस alertness के साथ आपने वहाँ पे जाना है, देखना है इस पिक्चर को.
So that is clearly observing the picture. Now, in order to clearly observe the picture and to help you understand what is the significance of this, I'll take a real life case study, and I'm good at connecting these things with case studies. It will make a lot of sense because I have been complimented with a lot of candidates कि सर ये आपका जो जिस तरह से आप real life case studies के साथ जोड़ते हो बहुत effective है. So I thought I'll do here also. Okay, fine. Now the case study is, now I'm sure all of us familiar with this case study. It is the Bombay Taj incident where Kasab and his team came and created all this mess. Now if I ask you what led to this situation, so the obvious or the superficial answer that all of us will give is a couple of terrorists from Pakistan who were trained there came into Mumbai through sea route and then created all this havoc there at CST and at the Hotel Taj and all those places. That's fine. What I want to tell you is that yes, this is the superficial level or the symptomatic answer कि ताज में कसब घुस गया था इसलिए हुआ. Now fundamental question is ताज में कसब कैसे घुसा? After all, is India such such a country कि इसमें कोई भी घुस सकता है? So ये जो आंसर है कि पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट ट्रेन करके अंदर घुस गए इसके कारण ताज में हुआ, that's a very very superficial or a surface level answer. So what I want to tell you is that जैसे इस पेड़ में दिखाया हुआ है, प्रॉब्लम के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम. So और ये बड़ा ऑब्वियस है. ऑब्वियस मतलब बहुत इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑब्वियस में. What is more important is can you see the not so obvious reasons why this happened? Obvious is the सगुण. सगुण को देखकर निर्गुण को समझ सकते हो. Sagun is Kasab आया and he got into Taj and killed so many people. That's Sagun. The Nirgun is what is not visible. Can you observe the invisible through the visible? That's the whole idea. Now let me give you some backdrop to why I'm asking this question. Look at this. This is an Indian Express article during those 26/11 attack, and this piece of new information is of dated 22nd December 2014. Now it says, New Delhi, in one of the most devastating near misses in spycraft, intelligence agencies of India, the US and the Britain failed to stop the 2008 Mumbai terrorist attack despite information from high-tech surveillance and other tools, the New York Times reported on Monday. So it says that what led to the situation? It's an intelligence failure. And this is, they call it as the most devastating near misses in spycraft. So military intelligence or whatever the national intelligence has failed because of which this incident led. Had it not failed, had it observed right time, had it taken some, then probably Kasab and his team would not have entered or would have been eliminated much before. Let's see it further. It is the US had picked up signs of a plot through electronic and human sources and warned Indian security officials several times in the month before the attack. Now look at this. So there was constant input coming to us, but our intelligence agencies could not fathom the consequences or the event that was going to unfold. So the observation or the interpretation went wrong. Now look at this. The reason. No one fully grasped the developing Mumbai conspiracy. They either weren't looking or did not understand what it all meant, said a former American official who had access to the intelligence and would speak only on the condition of anonymity. There was a lot more noise than signal there usually is. So it says, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ but उसमें कुछ मसाला या इंटेलिजेंस किसी ने कोई नहीं था या कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया. Now this line resembles to a lot of candidates who come coast from various places and make a lot of noise in the SSB with no substance in them. Let me give you an example. Now look at this. What is shown is a dead body lying and two people standing next to it. है ना. बट आर कोचिंग वाले सर ने कितना अच्छा बना दिया है. उन्होंने इतने पॉजिटिव बना दिया कैंडिडेट को. बोलते हैं कि भाई ये डेड बॉडी वुड बॉडी कुछ नहीं है, ये ड्रामा चल रहा है कॉलेज का एंड मूड बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ड्रामा चल रहा है. एंड द कैंडिडेट ऑल्सो लाइक चार्लीज listen, pay money and take this as the gospel truth because sir बोल रहे, कर्नल साहब ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं तो सच ही होगा. And then you make a Charlie out of it. And then you in the PPNDT shout because you're coached, otherwise you have no control over the perception, you have no control over the entire plot that has been generated. You make a lot of noise but no substance. It is actually what has happened in the Taj. And then
यू हैव मास रिजेक्शन। जैसे सर मैंने तो सब कुछ बोला था जो आपने बोला था, फिर भी हो गया है ना। बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, 3 इडियट, चमत्कार। So this does not work, gentlemen. Please understand. You're paying money to get Saraswati, but unfortunately what you're being made is a Chatur out of you. Charlie out of you. Chatur only speaks Chamatkar, with no understanding what is Chamatkar. Now let's see it further. The daily quoted Indian former National Security Advisor Shiv Shankar Menon is saying, no one put together the whole picture, not the Americans, not the British, not the Indians. No one put together the whole picture. अमेरिकन और ब्रिटिश को छोड़ दो, इंडिया में अटैक हुआ, हमने ही नहीं किया तो वो क्या करेंगे। इन द सेम वे व्हेन अ पिक्चर इज शोन, नो वन इज एबल टू पुट द होल पिक्चर इन करेक्ट पर्सपेक्टिव, बिकॉज कोचिंग वाले सर ने रटा रटाए कहानियाँ आप लोगों को सिखा दिया है। मिलिट्री लीडरशिप को इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू रोट मेमोरी। शेमफुल, इट इज़ अ शेम, इट्स अ नेशनल शेम कि मिलिट्री लीडर्स बनना है तो 20-30 कहानियाँ रट लो and then you become military. What cheap military leadership has become. Please be careful. Anyway, so clearly the Gangotri has been missed, and look at the consequence of missing the Gangotri. So I again ask you, what led to this situation? And I will say the intelligence failure, lack of coordination amongst intelligence agencies, and casual or the typical Indian chalta hai attitude led to this carnage. So you clearly missed the roots of the problem, and then people are speaking a lot of noises after that, this, that. No, we did a good job, army did a good job, all that is fantastic. Army did a good job because somebody did not do the job. So this chamatkar tariqa does not work. Now if you've understood what I'm trying to say, the same thing applies to this PAT picture. What led to this situation? You have to be very, very careful about observing the picture, understanding the nature of background given, the kind of figures on the ground, and the character, the relationship, the structure, and the relationship between the various components of the system. If you don't understand this, आप किसी के लिखे वाले रटे रटाए करके दे दो, कितना बड़ा आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। So please do not have any casual typical chalta attitude and depend upon some coaching wale sir what he tells you ka rata rata pada. That's bevakufi. You have to rely upon your own intellect, and it is a decision making process, and through a rational process you have to arrive at what led to the situation. It involves deep thinking, it involves certain degree of decision making skills, and to do all these things you require a sharp intellect. बुद्धि की जरूरत है, रट्टे की नहीं. This does not work. This does not work. You have to believe it. This does not work. Now, since I have mentioned about decision-making process, and you have to arrive at this Gangotri through a rational process. And इसमें सबसे पहला step है, after you observe it, identifying the problem. जब तक आपको problem identify नहीं होगा, उसका निवारण नहीं कर सकते. And problem identification जो है, symptomatic नहीं चल सकता कि पेड़ की झाड़ में ढूंढ रहे हो. झाड़ को ठीक करोगे तो मूल जड़ पे या बीज पे प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते. सो जो दिखता है सगुण, उससे जो नहीं दिखता निर्गुण तक पहुंचना पड़ेगा. दैट्स ए लिटिल प्रोसेस, एंड दिस कैन बी डन बाय समथिंग कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस. मूल कारण को विश्लेषण करके निकालना और उस कारण पे परिवर्तन करना. जब तक वो नहीं होगा तो हम झाड़ पे ही दवाई छिड़कते रह जाएंगे. That will not work. So very soon I'll be uploading another video how to do this root cause analysis. But उसके लिए मुझे आप लोगों का feedback चाहिए कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, is it making some impact to you? इसका कोई असर हो रहा है? अगर हो रहा है तो ज़रूर आप YouTube के comment box में इसका comment डालना, and then based on the comments that I get from you, I'll surely make this video as soon as possible and upload it root cause analysis के ऊपर. Now एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे खेल में आपकी तर्क की शक्ति का बहुत ज़बरदस्त योगदान होता है. दैट इज़ योर रीजनिंग एबिलिटी. और आपको पता होगा रीजनिंग एबिलिटी अपने जो OLQs है उसमें भी फैक्टर 1 का सेकंड OLQ है रीजनिंग एबिलिटी, तर्क की शक्ति.
तर्क की शक्ति को आप रट्टा मार के नहीं दिखा सकते। चतुर ने भी कोशिश किया था 3 इडियट में, चमत्कार चमत्कार रहता करता रह गया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आपने अपने तर्क की शक्ति का विकास करना है, ना कि रटने की शक्ति का। और ये आपको इतनी सारी लक्ष्मी 10-15 हज़ार रुपये देते हो और रटने के लिए देते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप मिलिट्री लीडरशिप के लिए जा रहे हो रट्टा मार के। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये रीजनिंग एबिलिटी क्या है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ये क्या है। ये है ना, द एबिलिटी टू ग्रास्प द एसेंशियल्स वेल। ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, कोचिंग वाला सर की नहीं, आपकी क्षमता किस चीज़ के लिए, ग्रास्प द एसेंशियल वेल, किसी भी परिस्थिति के जो एसेंशियल इनपुट्स है इसको ग्रहण करने की, ग्रास्प करने की शक्ति, एंड टू अराइव एट कंक्लूजन्स बाय रैशनल थिंकिंग। एंड देन आपने कुछ निष्कर्ष पे आना है प्योरली बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। आपने बहुत तर्क संगत विधि से कुछ निर्णय पर आना है। इस कैपेसिटी को बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है फैक्टर 1 का, और ये आपके बुद्धि से जुड़ा हुआ है। इसके कुछ एलिमेंट्स भी है। रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड्स रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब किसी नए इनपुट को ग्रहण करने की शक्ति। सेकंड, इंक्वायरिंग एटीट्यूड, जिज्ञासा। आपके अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है। एंड देन थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग, तर्क के साथ अपने विचारों को व्यक्त करना। एंड लास्ट इज सीइंग एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी भी परिस्थिति के मूल कारणों को निवारण करके निकाल के उसको प्रकट करने की या उसको व्यक्त करने की क्षमता। लेट्स सी इन सबका रिसेप्टिविटी, इंक्वायरिंग एटीट्यूड का डिटेल में डेफिनेशन क्या है। रिसेप्टिविटी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्ब न्यू इम्प्रेशंस। ये आपकी वो क्षमता है जिससे आप किसी भी नए सिचुएशंस को या नई परिस्थिति को बहुत गहराई से अच्छे से समझ सकते हो और ग्रहण कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट, अटेंशन एंड ग्रास्पिंग पावर। इसमें आपके इच्छा शक्ति, अटेंशन यानी कि सूक्ष्म तरीके से देखने की शक्ति, और ग्रहण, ग्रास्प की शक्ति का इस्तेमाल होता है। एंड इंक्वायरिंग एटीट्यूड इज हेल्दी क्यूरियोसिटी, अनहेल्दी क्यूरियोसिटी नहीं। एसएसबी क्रैक करने की क्यूरियोसिटी, सर रट्टा मारने की क्यूरियोसिटी नहीं, हेल्दी क्यूरियोसिटी, है ना। किस चीज़ के लिए, रिजल्टिंग इन एन अर्ज टू इंक्रीज वंस जर्नल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ। अपने जीवन के अनुभवों को और सामान्य ज्ञान को बढ़ाने की जो क्यूरियोसिटी है वो भी आपकी तर्क की शक्ति को बढ़ाता है। और उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग, it is the ability to arrive at conclusions or judgment based strictly on a process of rational thinking and excluding emotional factors। इसका मतलब लॉजिकल रीजनिंग आपकी वो एक काबिलियत है जिसके बदौलत आप एक जजमेंट के ऊपर या एक निष्कर्ष पे आते हो जो कि बिल्कुल तर्क संगत होती है, और उसमें भावनाओं के आधार पर नहीं लेते हो। भावनाओं को समझते हो, उसको अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक्नॉलेज करते हो, लेकिन जब आप निर्णय लेते हो तो भावनाओं को कट करके रैशनल डिसीजंस लेते हो। ये है लॉजिकल रीजनिंग। और seeing essentials of a problem, it is the ability by which the individual is not only clear in his knowledge of the situation at hand but also analyze various factors, sift them in order of importance and make best use of them towards achieving a solution। ये आपकी वो क्षमता है जिसके कारण एज एन इंडिविजुअल आप ना सिर्फ उस परिस्थिति के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ उसकी समझ है, आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हो, और ना सिर्फ समझते हो, उसमें जो वेरियस उसके पैरामीटर्स उसको बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हो, उसके अंदर के जो वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, और जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, इनहेरेंट रिसोर्सेज या जो एग्जिस्टिंग इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्टिंग है, उसको करेक्ट तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल करने में इस्तेमाल कर सकते हो। ये है सीइंग एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉब्लम। जीपी में भी देखो कुछ ऐसे ही तो करते हो आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। ये आपकी क्षमता है, आप इसका विकास ना करके रटे रटे कहानियाँ रखते हो और आपको लगता है आप मेरा चार्ली काटना चाहते हो। यू थिंक यू कैन कट ए चार्ली आउट ऑफ मी। कभी आना पुणे और मेरा चार्ली काट के देखना, और अगर मेरा काट लेते हो तब जाके कोचिंग से अपना एसएसबी वालों को काटना।
है ना, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो आप लोगों को ये रटवा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप खुद एसएसबी में थे और आपका कोई चार्ली काटे, आप उसको कैसे रगड़ते थे? मैं तो कसम से, मुझे कोई चार्ली काटे उसको मैं अपने पेन से रगड़ देता हूँ, एंड आई थिंक ही शुड बी रगड़ो। आप मेरा चार्ली काटने के लिए एसएसबी मत आना, आप अपने आप को विकसित करो और मुझे डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाओ कि आपके अंदर वो क्षमता है, बेवकूफ़ मत बताओ, है ना। नेक्स्ट इज, आपने अगर अंडरस्टैंडिंग टीएटी पार्ट 2 देखा होगा, जिसमें कि मैंने टाइप्स ऑफ स्लाइड्स एंड ऑल्सो दिखाया होगा, उसमें मैंने आपको चीज़ बताया था कि जब भी एक परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, हम उसे अपने दृष्टिकोण से, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसे अपने अंदर लेते हैं, उस इनपुट को अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस आउटपुट बाहर दिखाई देता है ना। और इसमें हमने देखा था कि दो इनपुट है, एक है कॉन्क्रीट इनपुट जो कि उस परिस्थिति से आता है, फॉर एग्जांपल इस केस में इस पिक्चर से आ रहा है, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट इनपुट जो कि अनसीन है, जो दिख नहीं रहा। सो पिक्चर, जो अभी ये पिक्चर दिख रहा है, ये सगुण है, और जो एब्स्ट्रैक्ट इनपुट है जो दिख नहीं रहा, वो निर्गुण है, वो आपने अंदर से क्रिएट करना है। सो आपकी ये क्षमता एब्स्ट्रैक्ट इनपुट का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओनली देन आपको इस पिक्चर के अंदर के इमोशंस को, उसके अंदर के डायनामिक्स को और उसके अंदर के रिलेशनशिप को समझ में आएगा, क्योंकि पिक्चर में तो ये सब दिया नहीं है। एंड यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है कि आपको सिम्टम्स को देख के कॉज तक जाने की क्षमता, सगुण से निर्गुण तक जाने की क्षमता। और इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी मैंने बताया कि पहला स्टेप है टू ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी वेरी केयरफुली एंड इन as much as detail as possible। तो अभी मैं इसको बताऊंगा इसको करना कैसे है। अब इसको करने के लिए आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए, वो है परसेप्चुअल एबिलिटी, या किसी पिक्चर को या किसी भी परिस्थिति को करेक्ट तरीके से परसीव करने की शक्ति, है ना। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, वो देख लेते हैं। परसेप्शन का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द सेंसरी इनपुट। परसेप्शन वो प्रोसेस है जिसके कारण जो भी सेंसरी इनपुट्स हैं, हमें कान नाक आँख से जो भी इनपुट मिलता है, उस इनपुट को हम अपने अंदर ले जाके उससे क्या मीनिंग निकालते हैं, उस पूरी विधि को परसेप्शन बोलते हैं। और ये एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमारा, है ना। Perception is to relate the sensory input with the past experience, with the learned objects and principle. परसेप्शन एक वो हमारे अंदर की काबिलियत है जिसके कारण हमारे इन सेंसरी इनपुट्स को अपने पुराने जीवन के अनुभवों के साथ उसको जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, या हमें जो भी सिखलाई है या हमारे जो भी प्रिंसिपल्स है या वैल्यू सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करके उसमें मीनिंग निकालने की क्षमता को परसेप्शन बोलते हैं। अगर आप रटा रटाया लिखते हो तो आपका परसेप्शनल एबिलिटी में एक बहुत ही इमेच्योरिटी या बहुत ही खोखलापन दिखाई देता। प्लीज़ इस बात को समझो। The perceptual ability of an individual is the result of many individual and environmental qualities, inner and outer factors, learning and practices। क्या मतलब है? इसका जो परसेप्शनल एबिलिटी है किसी भी व्यक्ति का, जो जिस तरह से विकास होता है उसमें उसका अपना इंडिविजुअल ट्रेट्स इन्वॉल्व होता है, जो सामाजिक परिस्थिति जिसमें उसका पालन पोषण हुआ, और वेरियस अदर फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, और उसके कुछ इनर फैक्टर्स, इनर मतलब उसके वैल्यू सिस्टम, उसके बिलीफ सिस्टम, उसके सप्रेशंस, इमोशंस, नीड्स, ड्राइव्स, ये सब उसको इन्फ्लुएंस करता है, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसकी सिखलाई कैसे, इसका प्रैक्टिस कैसे, इसके हैबिट्स कैसे हैं। सो ये सब मिला के हमारा परसेप्चुअल एबिलिटी को डेवलप किया जाता है। तो आपको रटने की बजाय चेक करना है कि मेरे परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसे रेक्टिफाई करना, ना कि घोटना है ना। नाउ इस प्रोसेस को करने के लिए द फिगर एंड ग्राउंड प्रोजेक्टिंग द पिक्चर ऑफ द स्टिमुलस, इट हैज़ टू ट्रिगर योर इमेजिनेशन एंड विच हैज़ टू ब्रिंग द एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोनेंट एंड लॉजिकली इट शुड बी एबल टू रिलेट विद द कॉन्क्रीट दैट इज प्रेजेंटेड टू यू। क्या मतलब है? यानी कि इस पिक्चर में कुछ कैरेक्टर्स भी दिखाए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में देयर आर कपल ऑफ कैरेक्टर्स शो, एंड कुछ बैकग्राउंड भी दिया है। सो फिगर इज द कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड इज द बैकड्रॉप इन द एंटायर थिंग इज देयर। इसको जैसे ही आपने अपने इनपुट में लिया, दिस हैज़ टू स्टिमुलेट अ थिंकिंग प्रोसेस इनसाइड, इमेजिनेशन के प्रोसेस को, कल्पना की शक्ति को एक्टिवेट करना है। और उसका काम क्या होना चाहिए? जो कॉन्क्रीट पिक्चर दिख रहा है और जो एब्स्ट्रैक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से दोनों को लिंक करने की इस विधि को एक्टिवेट करना चाहिए, इस प्रोसेस को एक्टिवेट करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आप कुछ भी ऐसे ही लिख रहे हो,
and then you will not know what are you writing, है ना. सो लेट्स सी इस फिगर एंड ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए इस पिक्चर को कैसे देखना है. नाउ लेट्स सी, पहले तो हम इस स्टिमुलस के बैकग्राउंड को पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे हो रहा है, बैकग्राउंड, है ना. और बैकग्राउंड को देखने के लिए क्या करेंगे, हम जो इसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग जो लोग इसमें कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उनके ड्रेस को भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि पता चल जाए कि ये ड्रेस क्या पहना हुआ, क्योंकि ड्रेस से हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा, उनका इकोनॉमिक स्टेटस का पता चल सकता है, ये पता चलता है क्या वो ऑफिशियल ड्रेस है या घर के अंदर का ड्रेस है, वट एवर वी कैन गिव लॉट ऑफ इनपुट्स. सो नॉन लिविंग ना, फॉर एग्जांपल ये जो दिया हुआ स्टिमुलस है ये कहाँ पे हो रहा है ना. क्या ये घर में हो रहा है, किसी होटल में हो रहा है, पार्क में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, ऑफिस में हो रहा है, या कोई मार्केट में हो रहा है, या किसी ट्रेन के अंदर है, एरोप्लेन के अंदर है, क्या मंदिर में है, मस्जिद में है, डेजर्ट में है, माउंटेन में है ना भाई, शिप में है, क्या ये पार्क के अंदर है, फुटबॉल ग्राउंड है, क्या हॉकी ग्राउंड है ना, फैक्ट्री है या थिएटर है, व्हाट इज़ इट, जंगल में तो नहीं हो रहा, जू में तो नहीं हो रहा. कुछ लोग इसको एनडीए का ट्रेनिंग कराते हैं, माप ना. मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी राइट्स की इसका हस्बैंड कारगिल में इंजरी हो गया था तो उसको न्यूज़ मिला, पहले बड़ी अपसेट हुई, बस इज स्टैंडर्ड स्टोरी, पता नहीं किस सर ने दिया, अरे सर जी बदल दो ना, है ना. क्या ये एनडीए का सीन है, आईएमए का सीन है, what I'm trying to say is you have to check that are you arriving at the background of this picture through a process of rational thinking या रटा रटाया. जब तक आप इसमें बारीकी से नहीं देखोगे आपका कोचिंग वाले सर का मॉडल काम नहीं करेगा. इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, आप पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक बंकर में बैठे हो, फौजी हो, और आप आईबी को मॉनिटर कर रहे हो. क्या आप उसको कैजुअली देख सकते हो? किसी भी मूवमेंट को आप बहुत ही बहुत ही शार्पनेस के साथ देखना चाहोगे, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है कोई पाकिस्तान का नया बंकर बन रहा हो. सो यू हैव टू लुक एट दिस पिक्चर विद दैट शार्पनेस. लोग इसको आधा से देखते, छोटा सा दिखा, हाँ बोला हाँ ये तो सर ने बताया वो स्टोरी के जैसा, मिला दो भिड़ा दो, मिला दो भिड़ा दो, कैसे काम करो यार, ऐसे नहीं चलेगा, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने इस पिक्चर को स्कैन करना है. जैसा स्कैनर चलता नहीं है लेफ्ट टू राइट या राइट टू टॉप टू बॉटम, उस तरह से. फॉर एग्जांपल जैसा स्कैन द पिक्चर फ्रॉम से फॉर एग्जांपल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो ये मैंने स्कैनिंग शुरू कर दिया. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्कैन? कोई भी हिस्सा इस पिक्चर का छूटना नहीं चाहिए, है ना. कोई भी हिस्सा इसको छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज नॉर्मली टेंडेंसी होता है एक फिगर देख लिया, हाँ क्लियर है, उसको छोड़ दिया, देख लिया, छोड़ दिया, भाग जाओ. नो नो नो, इट्स नॉट छोड़ दिया भाग जाओ. it has to be understood, because if you don't understand it, आपका डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे. और जब इसको लेफ्ट से राइट का स्कैन कर दिया, देन स्कैन इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सेकंड स्कैनिंग शुरू कर दिया. सो स्कैन इट, एंड द पर्पस ऑफ द स्कैनिंग इज टू एब्सोल्युटली बी क्लियर कि ये पिक्चर में व्हाट आर द इनपुट्स गिवन. क्या ये पिक्चर घर का है, ये हॉस्पिटल का, बिकॉज हर चीज़ आपको एक इंडिकेटर देगा. हॉस्पिटल का होगा तो दिल भी सम सेटिंग, अगर ये ऑफिस का होगा तो सम सेटिंग, है ना. कुछ लोग बोलते हैं ये हॉकी मैच चल रहा है इसलिए ये लड़की हॉकी मैच में हार गई है, घर में आकर रो रही है. भाई हॉकी मैच ग्राउंड में हारी, वहाँ क्यों नहीं रो, यहाँ आके क्यों रो रही? बोलते सर वो वापस घर आ गई थी. बोला हॉकी स्टिक का, सर वो कमरे के पीछे. अच्छा फिर इसका ड्रेस ट्रैक सूट का, सर उसने चेंज कर लिया. अरे वाह, अभी भी रो रही है ज़बरदस्ती का. बोलता ट्रेन का कंपार्टमेंट, उसमें आग लग गया. अगर ट्रेन का कंपार्टमेंट है, हाउ आई कम टू अराइव दैट ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, कहाँ आग लगा है? अगर ट्रेन का कंपार्टमेंट, देयर हैज़ टू बी क्लूज टू कम टू दैट कंक्लूजन कि ये ट्रेन का है, ट्रेन का आग लगा. और आग लगा है तो खड़ी क्यों है, भाग क्यों नहीं रही, बचाओ बचाओ या चिल्ला के. ओ नो 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 नो, दैट्स नॉट द वे टू राइट, है ना. नाउ बैकग्राउंड जैसे ही आपको पता चल जाता है बहुत क्लियरली, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सिचुएशन प्रेजेंट किया है ये किस सामाजिक परिवेश में इसको प्रेजेंट करा है. सामाजिक परिवेश में किस सोशल सेटिंग में परिवेश. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक ये नहीं पता चलेगा तो आप अगर इस पिक्चर को किसी टेम्पल का बना दिया, किसी ऑफिस का बना दिया, तो फिर मिसमैच हो जाएगा. सो दिस विल गिव यू द सोशल एनवायरनमेंट इन विच दिस एंटायर सिचुएशन हैज़ बीन डिपिक्टेड. नाउ व्हाट इज़ द सोशल एनवायरनमेंट? इसके लिए आपको सोशल फील्ड थियरी वाला वीडियो देखना पड़ेगा. अगर आपने नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू उसको यहाँ पॉज करो, पहले वो वीडियो देखो, बिकॉज मैं आगे इसको बार बार यूज़ करूँगा. तो इससे आपको एक सोशल एनवायरनमेंट मिल गया. नाउ दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप.
तो ये जो पिक्चर दिया है हमको एक पता चल गया कि ये एक घर के इन्वायरमेंट में है या जिस भी इन्वायरमेंट में आपको परसीव कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट का है। नाउ वी डोंट नो कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन है, इनका रिलेशनशिप क्या है और व्हाट इज़ द इश्यूज़, ये सब नहीं पता, बट इतना पता चल गया ये घर का है या हॉस्पिटल का है या होटल का है या पार्क का है, वो सीन पता चल गया है ना। या लड़ाई का सीन है या IMA का ट्रेनिंग चल रहा है या कोई किसान खेत में काम कर रहा है। सो दैट आई हैव आइडेंटिफाइड बाय आइडेंटिफाइंग द स्टिमुलस बैकग्राउंड। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके फाइन। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ टू ऑब्जर्व द लिविंग कैरेक्टर्स। नाउ इस पिक्चर में स्पेशली बहुत ऑब्वियसली एक कैरेक्टर तो बहुत अच्छे से पता चलता है एंड वो है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज़ अ फीमेल। बट देन ध्यान से देखा जाए तो देयर इज़ अनदर फिगर ऑन द राइट हैंड साइड। बहुत सारे लोग उस राइट हैंड साइड वाले फिगर को शायद देखते नहीं हैं, देखते हैं तो समझ में नहीं आता, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं एंड देन जस्ट कैच ऑन दिस वन एंड देन गो नो। सो anyway, that's okay. Now when you look at this figure that is a living characters, तो आपने क्या करना है, एक एक कैरेक्टर को पहले पकड़ना है और बाकी बैकड्रॉप को पूरे को बैकग्राउंड में कर देना एंड देन उनका एज, जेंडर, मूड, जो कुछ भी पूछते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, जेंडर, एज एंड मूड, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है ना। ना फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर देखा जाए तो दिस इज़ द प्राइमरी कैरेक्टर जिसको के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। सो यू हैव अ पर्सन देयर, सो यू पुट ए क्रॉस, जेंडर उसका जो भी है, मूड जो भी है, क्रॉस एंड देन क्योंकि ये प्राइमरी फोकस था आपका, इसके ऊपर सर्कलिंग कर दो और ध्यान से देखोगे तो देयर इज़ अनदर वन, दिस इज़ द वन, है ना। तो यहाँ पर सर्कल नहीं होगा बट यू विल अगेन पुट ए क्रॉस एंड देन जेंडर, एज, मूड एंड ऑल दोस थिंग ये लिखोगे। अगर ये PPNDT होता तो PPNDT में एक डब्बा होता है करीब 2 बाई 2 इंच का, लाइक दिस जो यहाँ पे दिखा हुआ, आपने इस डब्बे में इन दोनों इनपुट को यहाँ पे लिखना होता है, ये आपको पता ही है ना, क्रॉस, जेंडर, एज, मूड एंड ऑल दैट। नाउ अनफॉर्चुनेटली मूड यहाँ पे आपको पता है कौन सा मूड है, जीवन में भी पता है कौन सा मूड है, बट कोचिंग सेंटर वाले लोगों ने बी पॉजिटिव के चक्कर में वहाँ लगा दिया है। इस पिक्चर में भी जाके लड़की का मूड बहुत सारे लोग बी पॉजिटिव बोलते क्यों, खुशी के आंसू है। भाई खुशी के आंसू होंगे भी तो तुम्हें कैसे पता चला? शुरू में तो इमोशन जब देखा तो सैड का ही लगा ना, बाद में जब पता किया तब पता चला। सो हाउ कैन यू राइट इट इज़ खुशी के आंसू एंड पॉजिटिव है। कोई बोलता है इसके आँख में कचरा चला गया इसलिए वो साफ़ कर रही है। वाह भैया, एक मिलिट्री लीडर, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस। आँख में कचरा चला गया, थोड़ा सा ऐसा किया और आँख से पानी निकाला, उस पानी धोया एंड देन दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम सॉल्व। कोई बोलता है रात में बाथरूम जा रही थी, नींद से उठी थी, दिख नहीं रहा था इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे हो गई है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया, बाथरूम गई, वापस आके सो गई। वाह क्या बात है। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट द वे टू थिंक, दैट्स समथिंग fundamentally wrong with this thinking. Anyway, so once you identify the gender, age, mood and all those things, so that gives you not only through social environment तुमको पहले ही मिल गया था, उसके अंदर के इन्वॉल्व कैरेक्टर्स का एक स्ट्रक्चर भी मिलना शुरू हो गया, एक कंपोनेंट मिलना शुरू हो गया ना, व्हाट आर दी हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू प्ले इन दिस, है ना। नाउ बट अभी हमें कैरेक्टर्स तो पता चल गया 2 है फॉर एग्जांपल इस केस में, बट ये नहीं पता इन दोनों के बीच का कनेक्शन, रिलेशनशिप क्या है, बिकॉज जब तक इनका रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो सोशल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। सोशल एनवायरनमेंट बन गया है लेकिन हमारा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ एक कायदे कानून में होता है। अगर ये मान लो ब्रदर एंड सिस्टर है तो ब्रदर एंड सिस्टर का एक स्ट्रक्चर अलग हो जाता है ना। अगर ये फॉर एग्जांपल आई शो यू कपल ऑफ स्टोरीज, जैसे मैंने एक करण हरप्रीत का स्टोरी TAT पार्ट 2 में डाला था, जिसमें कि इन दोनों इसी पिक्चर में द कैरेक्टर के बीच का जो रिलेशन दिया था वो था एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का। नाउ दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप बिकॉज द मोमेंट यू मेक इट ए बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, पहला सवाल ये आता है ये दोनों एक कमरे में क्या कर रहे हैं, और वो भी एक बंदा लेटा हुआ, वो क्यों लेटा हुआ है, व्हाई दिस गर्ल क्राइंग। सो इट पुट्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया सिस्टम कंपोनेंट्स के बीच में या इस पिक्चर के वेरियस कैरेक्टर्स के बीच में, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। So every relationship will define what is the logical structure. Yeah, I don't know आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. So what you have to next step is to establish the relationship between these two characters. जब तक ये relationship सही में establish नहीं कर पाओगे तब तक आपका structure clearly define नहीं होगा. और आपने जैसे इसको explain किया, इससे आपको सोशल इन्वायरमेंट के अंदर का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा. और ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है,
तो यहाँ पे आपका थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज द अनसीन कॉम्पोनेंट, है ना. अनसीन कॉम्पोनेंट तो इवन जेंडर एज मोड में भी आ जाता है, बट वो सब फिर भी ऑब्वियस है. बट यहाँ से इसके बीच का जो रिलेशनशिप है, ये क्योंकि पिक्चर में नहीं दिया, ना कोई बताता है, ये आपने क्रिएट करना है. एंड दिस हैज टू बी वेरी केयरफुली डन. एक और रखने की चीज़ नहीं है, तर्क के साथ करना है ना. वी विल सी इसमें क्या क्या गलती होती है. वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो अबाउट इट. नाउ इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एंड एब्स्ट्रैक्ट में आपका तर्क की शक्ति, रीजनिंग एबिलिटीज का डेफिनेशन हमने पहले ही देख लिया. आप रटोगे तो ये सब आउट हो जाएगा. इसलिए भगवान के लिए पैसे दे के पेंट मत लगाओ अपने ऊपर, बुद्धि का विकास करो. एनीवे, ना यहाँ पे कोचिंग वाले सर ने क्या कर रखा है, उन्होंने बड़ा सिंपल तरीका बताया. हमारा 80% सक्सेस है, ISO सर्टिफाइड है. हम पिछले 25 साल से हम पेंट लगा रहे लोगों का, और बहुत लोगों ने SSB को क्रैक करके सेंध लगा के अंदर घुस गया. आप भी घुस जाओगे. रट लो इन कहानियों को, और आप बड़ी इज्जत के साथ उनको खरीदते हो, लक्ष्मी दे के, और रटते हो. जितना आप रटोगे आपका ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगा, आपका नेचुरलिटी ख़त्म हो जाएगा. एंड SSB में एक ही चीज़ देख रहे हैं, बी नेचुरल. एंड बी नेचुरल इज़ अ बी नेचुरल प्रोसेस. मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, रट के नहीं बात कर रहा हूँ. ये जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे मूव हो रहा है, आई हैव माई इनपुट एंड आई एम स्पीकिंग इट आउट ऑफ माई ओन कन्विक्शन. और जब आप चतुर की तरह रट के बकवास करना शुरू कर जाते हो, आपका तर्क की शक्ति, इसका विनाश हो जाता है, इसका सत्यानाश हो जाता है. विनाश तो छोड़ो. और इसका असर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट और SSB का रिलेशन कद्दू और चाकू का है. कद्दू चाकू में गिरे या चाकू कद्दू में गिरे, कटना कैंडिडेट नहीं है. जब आप इस तरीके से स्टोरी लिखते हो तो साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि प्री कंसीव नोशन, रेडीमेड रिस्पॉन्सेज, कोच रिस्पॉन्सेज, फैंटेसी बेस्ड रिस्पॉन्सेज, इलॉजिकल थिंकिंग एंड ऑल दिस, पता नहीं क्या क्या लिखता है, जस्ट रिजेक्ट्स इट. वो चेक भी नहीं करने का फील करता, बिकॉज सो स्टूपिड, बिकॉज कैंडिडेट से नेचुरल रिस्पॉन्स, और ये तो रट रट के लिख रहा हुआ. देयर इज नो मीनिंग इन सच ट्रेनिंग. ऐसे जगह में अगर आप जाके कोचिंग करते हो, भगवान के लिए वो लोग जो आपको बोलते हैं ऑफिसर बनना है ना, इसको पहन के रटो, उसको उन कोचिंग सेंटर का त्याग कर दो. मैं दोबारा बोलता हूँ, जो भी कोचिंग सेंटर आपको बोलता है ये WAT रट लो, TAT रट लो, ये SD रट लो, ये SRT रट लो, और ये GTO रट लो, इसको ये कर लो, वो कर लो, CIQ रट लो, उन कोचिंग सेंटर को दोनों हाथ जोड़ के उसका त्याग कर दो. समझ में नहीं आता तो दोबारा बोलता हूँ, उनका त्याग कर दो. वो तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं. तुम्हारे तर्क की शक्ति, तुम्हारे निर्णय लेने की शक्ति का विकास नहीं होगा. सिर्फ तुम चमत्कार वाले चतुर बनोगे, तुम्हारा चार्ली कटेगा. और अगर तुम्हें लगता है उस तरीके से तुम मुझे चार्ली काट लोगे, ट्राई कर लेना. मुझे पता नहीं आपके कोचिंग वाले सर जब SSB में थे, क्या वो अपना चार्ली कटवा लेते थे कैंडिडेट से? मैं सवाल पूछता हूँ उनसे, क्या उनके पास एक रटा रटाया लड़का आ जाए वो उसको क्लियर कर देते थे? मुझे शक है. कुछ लोगों ने तो पता नहीं पूरा SSB के डॉक्यूमेंट ही उड़ा के लेके अगर उसके ऊपर ट्रेनिंग करा रहे हैं, एक्चुअल 100% GTO ट्रांस पे करा रहे हैं. ये तो धोखाधड़ी हो गया. UPSC का पेपर लीक हो जाए, अंदर चले जाते हैं, बोलते हमने पूरा नियर रेप्लिका बना लिया. आई डोंट थिंक जब ये खुद जब SSB में थे, इनका कोई चार्ली काटे ना तो ये बिल्कुल उड़ा देते थे उनको. मैं तो उड़ा देता हूँ, मैं तो अब भी उड़ा दूँ. मैं बोलता हूँ उड़ाना चाहिए. मिलिट्री लीडरशिप की ट्रेनिंग रट्टे पे, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द वे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज टू बी डन. करना क्या है, इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना. इसका मतलब है कि आपको अगेन आपका रीजनिंग एबिलिटी, आपके तर्क की शक्ति, और जब आप इसको ठीक से एस्टैब्लिश कर पाते हो अपने तर्क के, तो आप इस सोशल एनवायरनमेंट में स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हो. फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड एंड वाइफ का फंक्शन का एक दायरा है जो कि इस वाइट ट्राइंगल से दिख रहा है. इस ट्राइंगल के अंदर अगर वो ऑपरेट करे तो बहुत अच्छा, इस ट्राइंगल के बाहर चले जाए तो वो गलत. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे शिखा वाली स्टोरी थी, अंडरस्टैंडिंग TAT पार्ट 1, उसमें द कैरेक्टर जो बनाया था वो शिखा थी. एंड शिखा वॉज अ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना. और स्टूडेंट उस केस में क्या हुए थे, शिखा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी. फेल होने में प्रॉब्लम नहीं, दे कैन बी रीजन बिकॉज ऑफ इट शी फेल्ड, बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन शी वेंट इनटू द रूम एंड रिफ्यूज्ड टू ओपन द डोर.
and then to an extent where her brother had to come and do all those things. So that was unacceptable because वो structure से बाहर चली गई ना, फेल हुई कोई बात नहीं, लेट्स सिट एनालाइज, पापा से बात किया, पापा ने अगर डांट भी मार दिया दैट्स ओके पापा, आई एम सॉरी, मैंने गलती हो गया, ये हो गया एंड ऑल दैट, एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक एंड देन डूइंग दैट करेक्शन, देन डूइंग इट द वे यू डिड इट. नो, यू डिड नॉट डू दैट. एज शिखा की स्टोरी में शी वाज नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम and then and ultimately the psych concluded कि she has got suicidal tendency. किया नहीं, potential है, कर सकती है. That's dangerous. So structure define हो जाता है. And then उसके बाद आपने इसका मूड को पहले पहचान लिया. अगर आपने इसको मूड ही पॉजिटिव बना दिया तो आपने पहचान ही नहीं, यानी कि you don't have the capacity to understand human emotions. Now that as a military leader is unacceptable. You have to take rational decisions, cutting off the emotional factors, but you have to acknowledge that there are human emotions. You have to understand human emotions. So इस मूड को पहचाना और उसके बाद इसका कारण आपको बताना पड़ेगा कि what has happened within this structure that you have defined, this triangle जो आपने बताया वो, for example husband wife, brother sister, student father, whatever. इस structure के अंदर इस मूड को justify करना पड़ेगा. आप इस मूड को अगर पॉजिटिव बना दोगे तो आप तो इशू को ही नहीं पहचान रहे. सो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मूड? नाउ दिस मूड इज द सिम्टम. ये सगुण है. इस सगुण को देखकर निर्गुण तक पहुंचना होगा. अगर आप वो कर पाते हो तो इस सोशल फील्ड थियरी का जो आपका सिचुएशन है वो समझ में आ जाएगा, सोशल सिचुएशन. एंड देन आपका मेन कैरेक्टर और ये सोशल सिचुएशन का इंटरैक्शन शुरू होगा. और आपने सोशल फील्ड थ्योरी में देखा होगा इस इंटरैक्शन का आउटपुट क्या होगा, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा जो कि हमें बाहर दिखाई देगा, विच इन योर केस, इन दिस केस यू विल बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरी रिस्पॉन्स. एंड देन उस रिस्पॉन्स से, उस बिहेवियर से डिकोड करके आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश किया जाएगा. तो कुल मिला, एंड लाइक यू रिमेंबर, योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी इंटरैक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट. So if you have understood this, this is the whole process. Now what I will do is, I will be very soon uploading a video on, in fact not one video, two of them, that is how to identify the mood. क्योंकि unfortunately coaching वाला सर ने तो मरे हुए dead body को भी positive बना दिया ड्रामा बना के. What a shame, what a shame. हा, डेड बॉडी को ड्रामा बना के आपको लगता है ये है ना. देन तो मैं बोलूँगा अगर ताज में अगर फायरिंग हो रहा, वो आग जल रहा, कसम ने बॉम्ब फोड़ रहा है, तो मैं बहुत बी पॉजिटिव में बोलूँगा यार रतन टाटा क्या दिवाली मना रहा है, बिल्डिंग उड़ा रहा है, बोल सकता हूँ क्या है. मेरे खुद का वाइफ का डेथ हुआ, अगर मैं बोलूँ कि ये ड्रामा कर रही है, खड़े हो जाओ, तो लोग बोलेंगे इसका दिमाग सटक गया. आपका भी दिमाग सटक गया है क्या? इनफैक्ट आपका तो सटका ही नहीं, सटका जो इस तरह के ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे उनका ज़रूर सटका लग रहा है. बच्चों को अच्छा भला सोचने वाले आदमी का बंदर बना दिया. सो आई विल सेपरेटली अपलोड अ वीडियो टू आइडेंटिफाई मूड or the emotions of the people, because unless you understand the emotion, how can you handle those emotions? And then I will also upload a video how to do this root cause analysis. But उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना एक फीडबैक ज़रूर डालना, उसमें झिझक नहीं करना, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक जो आता है वो मेरे को बड़ा इनकरेजिंग लगता है, वो मुझ में प्रेरणा देता है और नए वीडियो बनाने का. सो यू मस्ट गिव मी अ फीडबैक एंड ऑल्सो यू मस्ट कंपेयर दोज ऑफ यू गॉन थ्रू वेरियस ISO सर्टिफिकेट, SSB क्रैकिंग सेंटर्स, उन लोगों के विधि और इस विधि में क्या फ़र्क है, किस में लॉजिक है, किस में तर्क है. मैं नंबर 1 तो नहीं हूँ देश में, बट मैं DIPR रिकग्नाइज ज़रूर हूँ, अप्रूव ज़रूर, अप्रिशिएटेड ज़रूर हूँ. और इसलिए मैं उनके टक्कर में, मेरे 80% क्लियरेंस तो हो भी नहीं सकता, बिकॉज 80% मैं हर भेड़ को शेर नहीं बना सकता जैसे बाकी लोग बनाते हैं, ना मैं SSB क्रैक की ट्रेनिंग देता हूँ. सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली गिव मी ए फीडबैक कि जो लोग SSB क्रैकिंग सेंटर्स में गए, वहाँ का मेथोलॉजी और यहाँ के मेथोलॉजी में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दैट विल एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज़ एंड हेल्प यू थ्रू दीज video tutorial series. So your feedback is very, very important. Kindly share it, kindly subscribe to it, and we'll get back on more of these videos. Now I'd like to tell you that कुछ previously SSB क्रैकिंग सेंटर से कुछ कैंडिडेट्स मेरे पास आए थे. उन लोगों ने इस विधि से जब पहले ही दिन दे फाउंड इट इज़ सो लॉजिकल, एंड वन ऑफ दम इज़ फॉर एग्जांपल सुशांत गुप्ता, लखनऊ से आया था. इसका मोबाइल नंबर है 9839229612.
सुशांत जो है 2 बार कोचिंग लिया था, एक बार दिल्ली से कोई नामी गामी ISO सर्टिफिकेट क्रैकिंग सेंटर से, उसको बाद लखनऊ से कोई नया ज़बरदस्त उससे, है ना। दिल्ली में किसी ने तो GTO ग्राउंड में उसको तो यहाँ तक बोल दिया कि भैया GTO में रस्सा लेके हाथ काट लेना, उससे करेज दिखता, पट्टी मत करवाना। मैंने कहा हाथ काटने से करेज दिखता है क्या? रस्सी तो हेल्पिंग मटेरियल उसको बनाने के लिए होता है, ब्रिज वगैरह जो भी बनाना आप उससे, हाँ बोला सब बताया था। मैंने कहा यार उस तरह ही रख ले, उस तरह रख के चुपचाप ले जा, काट देना हाथ, पूरा PVC मिल जाएगा तेरे को। हाथ काटने से आई डोंट नो किस टाइप की ट्रेनिंग करा रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रहा है कि ऐसे कैसे GTOs हैं जो बोलते हैं कि रस्से से हाथ रगड़ लो और उससे खून आएगा तो करेज दिखेगा, पट्टी मत करवाना। बच्चे इतना विश्वास करके लक्ष्मी दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, और क्या ट्रेनिंग हो रही है। बोलते हैं हाथ काट लो करेज दिखता। एक और परमज्योति मिश्रा गालियां दे रहा था, बोला सर क्या सिखाता वहाँ पे, रटो, अफसर बनना, रटो रटो रटो। अरे हाँ, ये BSF के हैं कमलेश्वर सिंह, ये इनका भी नंबर है, परमज्योति मिश्रा का नंबर है 7389760204। बात करो जरा इन लोगों से और पूछो कि A4SOP की विधि हाउ सिंपल इट इज़। सत्य बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मैंने कर दिया क्योंकि मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट है। अपने आप को ISO सर्टिफाइड बोलता हूँ, क्रैकिंग सेंटर। अच्छा। कमलेश्वर सिंह राजस्थान से, झुंझुनू से आए, ये भी कहीं से रंग लगवा के आए थे। दिमाग खराब, अच्छा वाला बंदा बंदर बना दिया इसका। झुंझुनू से बात करना जरा, इनका एक वीडियो भी है, मैं कोशिश करूँगा उसको भी अपलोड करेंगे वेरी सून। यू विल कम टू नो व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। आई डोंट से वेदर विल गेट रिकमेंडेड, वो मेरे हाथ में नहीं है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, कर्म करो, अपने ऊपर कर्म करो। यहाँ पूरा क्रैक करो। अरे कमलेश्वर सिंह झुंझुनू से, उनका मोबाइल नंबर 9463982798। पता करो किस क्रैकिंग सेंटर में गए थे और वहाँ पे क्या ट्रेनिंग दिया और A4SOP में क्या हुआ इनका। सच की नाव हिलती है डुलती है मगर डूबती कभी नहीं। सच की नाव पकड़ लो, ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़ दो। एक और है, इनका नाम है पुनीत शर्मा, इनका नंबर है 8808809776। माँ बहन की गाली दे रहे थे क्रैकिंग सेंटर्स को, ISO सर्टिफिकेट। बोलता साला ये क्या है, बोलते डीप थिंकिंग वाले रट लो। मैं गधे की तरह रटता रह गया। GTO के ऊपर ना 2.5-3 एकड़ के GTO ग्राउंड बना के ऊपर चढ़ा के भगा दिया। बोलते ये हो गया तेरा GTO। कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे GTO में मैंने 1-2x3 के टेबल में जो पुनीत को कुछ करवाया है ना, उसका दिमाग खराब हो गया। सर हो ही नहीं रहे तो मैंने कहा वहाँ क्या क्या, भेड़ की तरह चढ़ा दिया 2.5 एकड़ की ज़मीन पे। You don't require 2.5 एकड़ की ज़मीन to give GTO training. GTO training is an application. इसमें आपकी सोच के अंदर शक्ति होनी चाहिए कि उन चीज़ों को, I'll post a video on that very soon. You have to understand. माँ बहन की गालियाँ दे रहा था, 25-25 हज़ार रुपये लोगों ने लपेट लिया। दिया क्या, पेंट मार दिया। Very sad. Military officers have been reduced to rote memory. Anyway, I'll give you an assignment before I post the second video, subsequent video, TAT part 2 है ना, part 4। आपने अब तक जो बताया उसके आधार पर इस पिक्चर को देखना और अपनी समझ से रूट कॉज एनालिसिस करना, नेट पे जाके मार के देखना ये क्या होता है, और इस पिक्चर को देख के कम से कम 10 कारण बताना जिसके कारण एक इंडियन परिवेश में एक इस उम्र की जो भी कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है, वो कैरेक्टर इस इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकती है ना। इसको आपको जीवन से जोड़ना पड़ेगा, इसको अपने अनुभव से जोड़ना पड़ेगा, इसको आपको यथार्थ से जोड़ना पड़ेगा, फैंटेसी पे नहीं। और भगवान के लिए वाला स्टोरी छोड़ दो जिसमें बोला कि कारगिल ऑपरेशन में इसका हस्बैंड मर गया था या चोट लग गया, पहले उदास हुई फिर अच्छी हो गई, फिर बेटे को किया, वो ड्रामा छोड़ दो। किसी कोचिंग वाले सर ने बनाया था, बहुत साल हो गया, वो छोड़ दो, कुछ नया बनाओ, है ना। सो मुझे रिस्पॉन्सेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10 कारण चाहिए व्हाट लेड टू दिस सिचुएशन, और ज़रा गहरा उतर के बोलना। और उसके बाद मैं कराऊंगा, मैं आपको 10 की जगह 15 करवाऊंगा, 20 करा दूंगा। हाँ, कार्बन कॉपी नहीं बनाना है हमें, मतलब सब बच्चों को पकड़ा के इसका ठीक नहीं, उसका ठीक नहीं, उसका ठीक है, लो सब ने उसको पकड़ लिया, कार्बन कॉपी बन जाते हो आप लोग। हाँ, आपका अपना सोचने की शक्ति कहाँ चली गई, उसका विकास क्यों नहीं कर रहे। बहुत गलत तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एनीवे, इसके अलावा मैं चाहूँगा अगले वीडियो के लिए एक और असाइनमेंट मैं आपको देख रहा हूँ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ।
For example, ego, fail, relationship, fear, blood, mother, knife, road, communication, problem, noise, mistake, team, effort, solution, ignorance, lock, sun, ambition and respect। मैं चाहूँगा इन सब वर्ड्स के ऊपर 5-5 रेस्पॉन्सेस, हर वर्ड के ऊपर 5-5 रेस्पॉन्सेस, जो भी आपको समझ में आता है उसको लिख के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना। और मैं आपके जो सिचुएशंस है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के, जो इनको लेके अगला वीडियो का तैयारी करूँगा। आई एम श्योर एक बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एक सवाल पूछा है कि सर इन सब के WT, TAT, SRT इनके बीच का जुड़ाव, इनके बीच का लिंक क्या है। बहुत सुंदर लिंक है, क्योंकि सोचने वाला व्यक्ति एक है। एक उदाहरण दूंगा, मान लो आपके पास एक मोटरसाइकिल है और उस मोटरसाइकिल का मैं आगे का टायर निकाल के पीछे कैरियर में लगाता हूँ, बोलता अब इसको लेके चले जाओ, आप जा सकते हो? नहीं जा सकते। वाई? पार्ट्स पूरा है बट दे आर नॉट इंटीग्रेटेड। इन द सेम वे WAT, TAT, SRT, GTO ये सब जो है ना, मोटरसाइकिल के अलग अलग हिस्से हैं। और क्योंकि ये मोटरसाइकिल एक है, हर हिस्सा इज़ कनेक्टेड टू द अदर हिस्सा, दे आर ऑल डीपली लिंक्ड। कोई भी एक चीज़ आइसोलेशन में नहीं है। तो आप WAT किसी के डीप थिंकिंग घोट लिया, TAT किसी के घोट लिया, कैसे लिंक होगा? एक मोटरसाइकिल का एक एक्सेलेटर का केबल बाहर निकाल दूँ, इट विल नॉट वर्क even though the parts are पूरे। So don't prepare for SSB in parts, look at the whole। अनफॉर्चुनेटली आपका पूरा जो कोचिंग सेंटर का ट्रेनिंग है ना, वो पार्ट्स में दिया जा रहा है, और वो भी आपके अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके नहीं है। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको दिखाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ जाके आप अपने हार्ड अर्न मनी को झोंक रहे हो। Okay, chalo, anyway, if you are liking these videos, you can visit to A4SOP video library by typing A4SOP to YouTube. Please subscribe to it, share it, and hope it makes a lot of sense to you. आप मुझे फेसबुक पे भी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज सकते हो। A4SOP मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस है। इसके अलावा www.a4lsd.in is the website, not fully developed। मोबाइल नंबर है मेरा 8275577650 और ईमेल ID है a4sop@gmail.com। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, गिव मी ए फीडबैक तो ज़रूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही डालना। उसके बाद A4SOP का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आई डोंट कॉल इट A4SOP, इनफैक्ट देयर इज़ नो कोचिंग। TAT, WAT का इम्प्रूव होना शुड बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। सो आई गॉट A4SOP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। 30 दिन का बैच है और 14 डेज़ के मॉड्यूल्स में भी अवेलेबल है। पुणे में कंडक्ट होता है। जुलाई का जो नेक्स्ट बैच है वो 27 जुलाई को शुरू होगा, 27 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंड अगस्त का जो बैचेस है वो 3 अगस्त से है, 10 अगस्त से है, एंड 17 अगस्त से है, एंड उसके बाद लास्ट वाला 24 अगस्त। तो मुझसे एक बार बात जरूर कर लेना बिफोर यू बुक योर टिकट्स फॉर कमिंग टू पुणे। एंड to register for these classes, you can send me a mail at a4sop@gmail.com or you can call at 8275577650। यही नंबर व्हाट्सएप का भी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और दिस इज़ माय इंस्टीट्यूट एड्रेस, एकेडमी फॉर लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट, पुणे में है। और इसका गूगल मैप के ऊपर भी दिस इज़ अवेलेबल, सो यू कैन वॉच इट ऑन द गूगल मैप ऑल्सो। This is the PG accommodation that is available. Boys and girls both can come and stay. It's very comfortable. And the contact persons are Mr. Venkatesh. His number is given there, 9960936246, and Mr. Uttam, 9860117022. So please make sure that you book your PG in advance before you land up here to avoid any last minute running around. Thank you for watching. I enjoyed interacting with you, and I hope this video you find it useful in your preparation for SSB. Kindly share this video with others. Thank you very much.